Good morning, my dear students. Today I am going to explain left topic of chapter 18 and the topic is characteristics of democracy. यानी डेमोक्रेसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सोवर्जिनिटी, पहला क्या होता है? प्रभुसत्ता, इक्वालिटी. दूसरा बराबरी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी. ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि sovereignty is a democracy. Sovereignty rests with people who are the ultimate source of power. यानी कि प्रभुसत्ता उन लोगों के बीच में होती है जो हमारे देश को चलाने में सहयोग देते हैं. इक्वालिटी, सभी लोग हमारे डेमोक्रेसी में एक बराबर होते हैं, यानी कि एक वोट का भी महत्व होता है. Democratic fraternity, government is based on mutual goodwill and fraternity. The purpose of giving equal rights to every individual is promote fraternity. यानी कि यहाँ पे हर एक नागरिक, भारत का हर एक नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर होता है. Liberty is an essential characteristic of democracy. Is a democratic setup. Everybody is free to express his opinion, to form association, to follow any religion and to criticize the government. और इसमें सभी लोग अपने फ्री होते हैं कि वो सरकार को लेकर के या फिर अपने धर्म को लेकर के, अपने एसोसिएशन को लेकर के फ्री होते हैं. अगर वो जिस धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को अपना सकते हैं. वो पढ़ाई करना चाहे, वो जो पढ़ाई करना चाहे वो कर, यानी कि इस पे किसी का दबाव नहीं होता है. स्टेट एंड गवर्नमेंट आर जस्ट मीन्स टू an end. And in a democratic government, the state and government are considered as a mere means for fulfilling the interest of the individual. यानी कि गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिल करके व्यक्ति के लिए काम करना होता है. Provisions of rights. The provision for rights made in the constitution is a symbol of perfect and healthy democracy. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को राइट्स दिए गए हैं. So, in a democratic government, people are provisional social, economic, religious, political, and cultural rights. Proper safeguards are also installed for the proper protection of such rights. और इन राइट्स को फॉलो करने के लिए कई सारे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह भी लगाए गए हैं कि अगर हमारे राइट्स का किसी तरीके से हनन होता है तो हम उसको अपोज कर सकें. Regular election. To strengthen democracy, provision is also made for regular elections at fixed time. The people elect their representative directly or indirectly on the run administrative through them. और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेगुलर इलेक्शन को भी शामिल किया गया है कि अगर हमें एक सरकार नहीं पसंद आ रही है तो हम नेक्स्ट टाइम उसको चेंज कर सकें. Rule of majority. Present day democracy is also known as the rule of majority. In a general election, the party which gets clear majority forms the government. यानी कि अगर जिसको वोट ज्यादा मिलता है वो गवर्नमेंट जीतती है. Rule of law. In a democracy, the administration function according to some fixed laws which are supreme. Every individual whose he may be is born to obey them. और rule of law यानी कि कानून का जो रूल होता है वो सबको फॉलो करना है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो. प्लूरलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देयर इज अ फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप. यानी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए आप फ्री हो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज टू अक्योर पॉलिटिकल पावर. और आज हमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई देती हैं. डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. The Constitution of India provides for a democratic form of government. The government is accountable to the people. यानी कि जो सरकार होता है वो लोगों के उत्तर देने का दायित्व निभाता है. यानी कि अगर सरकार से हम सवाल करते हैं तो उसका ये उत्तरदायित्व होता है कि वो हमें आंसर करे. The goal of our constitution is to stabilize democracy, socialism and secularism. To achieve three goals, our constitution has given the people a very strong and reliable tool. This tool is the establishment of democratic form of government. Equality is a key element of democracy and influences all aspects of its functioning. यानी कि हम जिस सरकार को चुन करके ले जाते हैं, अगर वो सरकार हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है तो हम उसे बदल सकते हैं. Equal rights to vote. In a democracy, the government is set up by the people through a process called voting, where they cast their votes in favor of particular candidate at election. यानी कि हमें वोट देने का अधिकार है कि हम अपने
अपने वोट का यूज करके ऐसे व्यक्ति को जिताएं जो हमारे लिए काम करे। In India, every citizen above 18 years has a right to vote and contest in elections. Therefore, we are free to exercise our right to try and choose our government. यानी कि हमें यह अधिकार है कि हम अपने अकॉर्डिंग सरकार का चुनाव करें। और प्रत्येक 18 साल के व्यक्ति को यहाँ पे यह अधिकार है कि वो चुनाव कर सकता है और अपने पॉलिटिकल पार्टीज भी बना सकता है। इसी को हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इट इज एन essential element of all the democracy is the government of the people, but everybody cannot run the government at a time. डेमोक्रेसी लोगों के लिए होता है, लेकिन क्या हम सभी लोग मिलकर के अपनी सरकार को चला सकते हैं? नहीं। सो वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न on our behalf. An adult is entitled to vote in an election. यानी कि हम अपनी तरफ से अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, चुनते हैं जो हमारे लिए काम करे। Okay. Other kinds of equality. Our society is divided into different castes and classes. This hampers political economic equality. Our society is still caste ridden. It is full of different social groups. A person's caste is decided on the basis of birth rather than profession or अदर क्राइटेरिया। यानी कि पहले वही चीजें जो कास्ट था वो प्रोफेशन को भी फॉलो करता था, लेकिन आज ये चीजें नहीं है। हाउएवर इन एवरी सोसाइटी देयर आर रिच एंड पुअर। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सपोज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट डू ऑल द पीपल इन आवर कंट्री एंजॉय इक्वल फ्रीडम। यानी हमारी सरकार सबके लिए काम करती है, लेकिन क्या सब एक बराबर यहाँ पे है? नहीं। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट सो। In our society, some people are said to be high caste simply because they are born in a particular caste. In contrast, some treated as untouchables in the more remote areas of our huge country. It is a sad fact that people from certain castes cannot mightily free and dine with others. यानी कि पहले ये चीजें थी, लेकिन अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। कि पहले लोग लोअर कास्ट और हाई कास्ट होता था, अपर कास्ट होता था, लोग अनटचेबल्स होते थे, लोगों को छुआछूत की भावना होती थी, लेकिन अब ये मैक्सिमम चीजें खत्म हो चुकी हैं। देयर आर स्टिल सम क्लासेस ऑफ पीपल हु आर नॉट अलाउड टू सोशल गैदरिंग एंड आर डिबार्ड फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस सच एज वेल्स, टैंक्स और टेम्पल। सच आउटडेटेड वेलफेयर मस्ट गो इफ डेमोक्रेटम इज टू सर्वाइव। और कहीं भी अभी थोड़े बहुत जगह पे भी अभी ये चीजें हैं जिसे हमें क्या करना है, खत्म करना है। Recognizing dignity. Now let us read a story about the experience of Dalit student Juthan. It is a part of the autobiography of a famous Dalit writer Om Prakash Valmiki. ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का बायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, जूठन। He says that he had to sit away in the classroom class 6 from the student of higher caste. Even the mat ran short of the spot he was to sit on. यानी कि उन्होंने इसमें ये बताया है कि जब वो क्लास 6 में पढ़ते थे तो उनको बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था और जहां वो बैठते थे वहां पे चटाई भी नहीं होती थी। One day the school headmaster asked him to clean the school and the playground. एक दिन उनके स्कूल मास्टर ने उन्हें स्कूल और प्लेग्राउंड साफ करने के लिए कहा। He was a weak boy and the playground was very large. It was difficult task for him, but as he had no choice, he started cleaning the playground and the schools. वो बहुत वीक थे और वो मतलब इतने बड़े नहीं थे कि वो इस पूरे स्कूल ग्राउंड को साफ कर सके, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। His whole body was covered with dust. Dust even entered his mouth and nostrils. Hammering away in his mind was the thought that while other students were studying, he was sweeping. यानी कि वो सफाई करते करते उनकी पूरी बॉडी डस्ट से भर गई थी और डस्ट उनके बॉडी के अंदर भी चला गया था, लेकिन वो काम करते करते भी उनके जहन में बस एक ही बात आती थी कि क्यों मुझे काम करना पड़ा, बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। The headmaster was constantly watching him. He was not even allowed to drink water. और जो हेडमास्टर था वो उनको देख रहा था और वो उसे पानी पीने का भी परमिशन नहीं दिया। He was kept cleaning the school the whole day, from the doors and windows to rooms of the
school. He was made to clean the school for the next couple of days. यानी कि उन्होंने स्कूल को 2-3 दिनों तक साफ किया. This exercise came to an end only when his father, passing by the school, saw his son cleaning instead of studying. His father had heated an argument with the headmaster before holding Valmiki's hand as they left the school. His father scolded the teacher for his unethical attitude and told him that though they were leaving, he had better remembered that Valmiki would continue to study right through not just him but others who would be coming after him. यानी जब और ये चीजें उस समय खत्म हुई जब उनके पिताजी ने एक बार उन्हें रास्ते से आते जाते उन्हें सफाई करते देख लिया, तो उन्होंने हेडमास्टर से झगड़ा करके उन्हें स्कूल से निकाल दिया और बल्कि उनसे ये भी कहा कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई बंद नहीं करवाऊंगा बल्कि अच्छे इंसान से पढ़ाऊंगा. Why is equality important? इक्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? आखिर स्कूल में सारे बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के क्यों बुलाया जाता है? ये एक इक्वालिटी ही शो करता है, जिससे ये पता चलता है कि सारे बच्चे एक तरह के स्कूल यूनिफॉर्म पहने तो किसी के पास पैसे ज्यादा हो तो अच्छा यूनिफॉर्म पहनेगा, किसी के पास कम हो तो खराब यूनिफॉर्म पहनेगा. इसी चीज को खत्म करने के लिए स्कूल्स में यूनिफॉर्म लगवाए गए हैं. Useless we are able to provide equal opportunities to all the section of society, democracy cannot be successful. और जब तक हम सभी को एक बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तब तक हमारी डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं होगी. The color of the blood of everyone is the same. So why should some people be treated as a high up and other as so in the social hierarchy? सबका खून तो एक बराबर है लेकिन फिर भी हम हायरार्की क्यों दिखाते हैं? This distinction is man-made, not a natural one. The concept must go if we have built a healthy society and establish a sound democracy. In fact, in the absence of social democracy, political and economic democracy cannot be achieved. लेकिन अगर हमें अपने समाज में एक अच्छा डेमोक्रेसी लाना है तो हमें सबसे पहले ये बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा. और जब तक हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा तब तक हमारा राजनीतिक विकास भी संभव नहीं है. ओके, डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी के डायमेंशन क्या क्या होते हैं? पॉलिटिकल इक्वालिटी. Our constitution declares that all people living in the country have equal rights. There will be no discrimination on the basis of caste, class and sex. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल दिया है कि सभी लोग बराबर है और किसी का जाति धर्म और लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा. Efforts will be made to bridge the gap between rich and poor. आज भी जो रिच एंड पुअर के बीच जो गैप है क्या उसको खत्म किया गया है? Thus there will be equal opportunity to all the move forward. Our constitution has laid down many guidelines to promote equality among people. It declared that everybody is equal before the law. कानून के सामने सब लोग बराबर हैं. There is no provisions for a special law for any important person. In other words, the same law will be applicable to the president, democratic worker or anybody else. यानी कि प्रेसिडेंट के लिए भी वही लॉ है और कोई आम आदमी है तो उसके लिए भी वही लॉ है. The Constitution also states that there will be no discrimination on the basis of caste, religious, sex or place of birth. Also, everybody is entitled to access public places like tanks, well, temples, etc. Untouchability has been abolished to promote equality. The government has taken many steps to eradicate the evil of untouchability. यानी कि अनटचबिलिटी को समाप्त करने के लिए कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं. पहले जो लोग सामूहिक जगह पे जा नहीं सकते थे, सामूहिक जो सार्वजनिक नल होते थे वहां पानी नहीं पी सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, वो चीजें अब बिल्कुल खत्म हो गई हैं. इकोनॉमिक इक्वालिटी. पॉवर्टी इज अ कर्स. एज वी आर नोइंग, पॉवर्टी इज अ कर्स. गरीबी एक श्राप है. इफ रियल डेमोक्रेसी इज टू बी स्टेबलाइज्ड देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विल हैव टू बी मिनिमाइज्ड. Our constitution guarantees equality to the people. The government has tried to implement this is two way. First through the law and second through various government welfare programs and scheme. यानी कि इस इक्वालिटी को बनाने के लिए गवर्नमेंट कई सारे स्कीम बनाती है. The government is striving hard to break poverty-stricken people, those who have been ignored for centuries, into mainstream. One such welfare program is मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम में यानी कि जो बच्चे पढ़ने से वंचित हो जाते थे, जिन्हें खाने के लिए मिलता था, एटलीस्ट वो पढ़ने आते तो उन्हें खाने के लिए भी मिल जाता है. ओके. तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2009. यानी तमिलनाडु पहला ऐसा
स्टेट था जिसने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम को अपनाया था। Social equality. Our country faces many problems in social sector. In order to solve these problems and to boost development in different fields, we need to root out the prejudice that have no place in a democracy. Apart from government, is a duty to every citizen today to join hands in making our society better and the country more prosperous. यानी कि हम अपने से छोटे इंसान को देख करके अपने अंदर ये पहले ही भावना बैठा रहे तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ये चीजें हमारे डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हमें पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। Issues of equality in other democracies. The fight for equality is a universal phenomena. और ये सारी चीजें बस हमारी कंट्री में नहीं है, ये सारी कंट्रीज में है। It is present everywhere from development to underdeveloped countries through its active form varies from country to country. India is not only country which is suffering from inequality. Inequality exists even in advanced countries. Let us take an example from the United States of America. United States of America की example लेते हैं। In the USA, one section of society is called African Americans, whose ancestors were brought to America as slave from Africa. कुछ लोगों को यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको अफ्रीका के एज अ स्लेव के रूप में, दास के रूप में लाया गया था। इट वॉज अनएथिकल टू यूज द निग्रो, जिनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? निग्रो। जस्ट एज अर्लियर सच एज ब्लैक्स और निग्रोज went out of the window earlier, but through African American is currently the socialist section term. It is still a euphemism. Nothing has really changed. The old prejudice based on the color of one's skin still continue through in a more convert form. और आज लोग रंग के आधार पे भी ये चीजों को फॉलो करते हैं। These people were still not treated on equal footing with white men. In the late 1950s, people started raising their voice against अनइक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो डिफरेंस किया जाता था वो भी यहाँ पे होता था अफ्रीका में। इन द लास्ट लेट द मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन अ पेटी इश्यू। अ लेडी रोसाक पार्क, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, वाज रिटर्निंग होम आफ्टर वर्क। इन द कोर्स ऑफ हर journey to home, the exhausted lady occupied a seat on a bus. A white man asked her to give up the seat. She refused. This relatively minor incident triggered a huge agitation against the unequal treatment to the African Americans. यानी कि एक लेडी जो अपनी जॉब से वापस आ रही थी, वो एक बस में बैठी थी, तो उसमें से एक व्हाइट आदमी आया जिसने उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे बस दो, मतलब वो सीट दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया। तो ये छोटी सी घटना एक बहुत बड़ा वहां पे एक रिवोल्यूशन बन गया था। दिस एजिटेशन स्प्रेड वाइडली एंड लेटर केम टू बी नोन एज अ सिविल राइट मूवमेंट, जिसको क्या कहा गया? सिविल राइट मूवमेंट। एज अ रिजल्ट द सिविल राइट मूवमेंट एक्ट ऑफ 1964 वाज पास्ड विद प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस। उसके बाद इसी यहाँ पे 1964 में एक्ट बनाया गया कि जिसके बीच में व्हाइट और ब्लैक के भी डिफरेंस खत्म कर दिया गया। द चैलेंजिंग फेसिंग डेमोक्रेसी। Okay, the ugly side of Indian society includes evils such as the caste system, poverty, illiteracy, dogmatic extremism. These features are hampering the growth of equality. यानी इसके अलावा भी कास्ट सिस्टम, पॉवर्टी और इलिटरेसी भी हमारे डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। Excerpts from Article 15 of the Indian Constitution, यानी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो 15 आर्टिकल है वो क्या कहता है? Prohibition of discrimination on grounds of religion, race and caste, sex or place of birth, यानी कि जाति, लिंग और धर्म के आधार पे इस चीजों को खत्म किया गया है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, सेक्स, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, यानी कि धर्म, जाति और बर्थ प्लेस के आधार पे हम किसी के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, यानी कि अगर वो वहां पे कहीं जाना चाहते तो उन्हें पूरी आजादी है। वो कुएं से पानी पी सकते हैं, बाथिंग घाट्स पे जा सकते हैं, रोड्स यूज कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस, रिजॉर्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि ये सारी चीजें उनके देख करके बनाई गई हैं। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। आज के जमाने में क्या डेमोक्रेसी के लिए जो चैलेंजेस हैं,
Even after over 65 years of independence, people have their misgiving about democracy in adult India because of the following hindrances in its way. यानी कि आजादी के 64 साल के बाद 65 साल के बाद भी आज हमें कई सारी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। वो क्या? इलिटरेसी। In India, only 74% in 2011 people are literate, so there are large number of illiterate in India. यानी कि 74% यहाँ पे लोग बस शिक्षित हैं। अभी भी 36% लोग illiterate हैं। Economic inequality, widespread economic inequality are prevalent in India. Over 30% of the people are still living below the poverty line. यानी 30% लोग से भी ज्यादा लोग अब poverty line के नीचे रहते हैं। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। Social inequality. The Indian Constitution has made many provisions to stabilize social inequality in India. Yet even now, discrimination on the basis of caste, color and race is very common. यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ होने की बाद भी हमें धर्म, जाति और सेक्स के आधार पे आज भी कई सारी चीजों का मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, असमानताएं देखनी पड़ती हैं। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी. Political inequality is considered necessary for enable citizens to develop themselves and participate in the affairs of the state. आज भी कहीं पे लोगों को, आम जनता को यानी कि कास्ट के आधार पे लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। Communalism. Communalism being a division features poses a serious threat to democracy. यानी कम्युनलिज्म की वजह से भी हमारी डेमोक्रेसी को एक मूवमेंट करने में ऑब्स्टिकल का काम करता है ये। Lack of political stability. Political stability is essential for the success of democracy, but in the last few years, India has seen a lack of political stability both in the state as well as the center. यानी कि political stability भी हमारी कंट्री में नहीं है। During the year 1996-1997, 3 governments were formed at the center. Now we have coalited government at the center and it many states. यानी कि स्टेट में भी गवर्नमेंट होता है और सेंटर में भी गवर्नमेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच हमेशा मतभेद बना रहता है जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ओके, नाउ आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड योर होमवर्क इज टू फिल बुक एक्सरसाइज बाय योर ओन। ओके, हैव अ गुड डे।